इस लेक्चर के बाद ठीक है। रिक्वेस्ट करूँगा बैरिस्टर साहब से तशरीफ लाएँ, अपने लेक्चर का कर सकें। थोड़ा सा टाइम होगा क्योंकि मैं ग्रीन टी पी रहा था, साथ साथ पीता रहा। Constitution. We see in the Constitution of Pakistan, every one of us. ऐसा ही तो Constitution of Pakistan है क्या? What is a Constitution? Any one of you can you define what a Constitution is? आप बता दो। जी जी जी। You do. Set of rules required by the state to run the state. Set of rules. Those set of rules, what are those set of rules? Those set of rules would define the relationship between the citizen and the state, the duties that the citizen would owe towards that state, those are known as the obligations, and the rights that that citizen, by virtue of being that citizen of the state, has. So it is a set of rules which defines the relationship between the citizen and the state and gives a number of rights that are available to him and the obligations that are imposed on him. Secondly, the Constitution, this is a generic definition of the Constitution. This is not particular to the Pakistani Constitution, any Constitution. And then the Constitution would also define the roles of its institutions and the interlink between those institutions, how they are going to hold or conduct their business vis-a-vis the other institutions of the state. So this is basically, the Constitution is the supreme law of the country. If you want a one-liner, it is a law which holds supremacy over any other law. So if there is an act of parliament and it conflicts with a law, which is the constitutional law, it is the constitutional law which would hold supremacy, supreme constitutional law. Any constitution serves three purposes. First of all, it distributes powers. It distributes powers, for example, legislature, executive, judiciary. These are the three organs of the state. So any constitution would distribute the powers of the state. It would distribute it amongst the legislature, the judiciary, and the executive. This is generic to all the constitutions. You've read other constitutions apart from Pakistani constitution, sir? आपसे बात कर रहा हूँ। कोई और constitution नहीं देखा? US का देखा हो, UK का देखा हो, UK का constitution देखा नहीं? आपने से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट्स हैं कोई यहाँ पर? आप हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोई स्टूडेंट बैठा हो? जी सर। जी। UK का constitution क्या है? नहीं, अनकोडिफाइड तो है। कोडिफाइड किसको कहते हैं? Codified is a constitution which is in the written form, and usually constitutions which are codified are rigid in nature. They are not flexible in the terms that they cannot be amended by the same majority as a normal statute. It would require 2/3 majority to amend that law. You get the constitution, क्या चीज़ है सर? What do you get? 1, 2, 2. क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? This is more of an interactive lecture. But आपने यूके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? अब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्टूडेंट हैं. What is a constitutional law? उसके सोर्सेस क्या हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन? कब किया है? टाइम हो गया? अंदाजा साल 2 साल? घबरा क्यों गए हैं? क्या हुआ?
बिल ऑफ राइट्स है, मैग्ना कार्टा है, आगे कुछ चीज़ें होंगी, कन्वेंशन होंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग चला नहीं, हाँ ठीक है किसी हद तक, हाँ कॉमन लॉ है, हाँ जी। So they say that it is a codified or uncodified में फर्क जरा समझिएगा। Codified ये codified है, इसका एक एक आर्टिकल एक एक चीज एक जगह पे मौजूद है, इसको कहते हैं codified। तो यू का कॉन्स्टिट्यूशन है that is scattered in a number of places, बिल ऑफ राइट्स में भी है, मैग्ना कार्टा में भी है, कन्वेंशन में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो एक तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसीलिए डी टॉकेबल ने, इट्स अ फ्रेंच राइटर, उसने कहा था यूके हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल। व्हाट ही मेंट वाज कि इट डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज इन अ रिटन फॉर्म इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और कोडिफाइड। ठीक है जी। अच्छा जी, पहला काम क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन? इट विल डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स। ठीक है, लिख लें इसको, अच्छा होता है। Second, any constitution anywhere in the world would give you certain fundamental rights. It provides for fundamental rights to its citizens. क्या हुआ सर? उन्होंने बोला कोई नहीं, आप लोग थोड़ी सी घबराई हुई क्लास है, क्या मसला है? हाँ जी, किसने डराया? और नहीं कोई नहीं, डरना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब ज्यादा भी बेबाक ना हो जाइए, लेकिन डरना नहीं है। वकील का काम डरना नहीं होता, वकील का काम है कि चले लड़ना नहीं होता आगे केस की हद तक। ठीक है, with the passage of time, as soon as I मतलब proceed with the lecture, I give you examples के कहाँ बोल सकते हैं, कहाँ नहीं बोल सकते। अच्छा जी, पहला distribution of powers, second fundamental rights, then the third is the social contract। ठीक है जी, it would give a relationship of that individual with the state. It would give the citizen a list of rights that he has and the obligations, the corresponding obligations that that individual would have towards the state. कोई एक obligation तो state की तरफ हमारी बताओ, loyalty, किसने बोला? किसने? आपने जी बताएं। लॉयल्टी आपका परफेक्ट एग्जांपल है। आर्टिकल साइड कर सकते हैं? आर्टिकल 5 है, जिंदाबाद। एंड इन केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ दैट आर्टिकल 6। अच्छा जी, अब थोड़ा सा लिख लें कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। The first we've already discussed. It is a written piece of document. So Pakistani constitution is a written constitution. It is a codified constitution, as opposed to rigid by virtue of, देखें rigidity की जब हम बात करते हैं तो rigidity directly क्या चीज है कि how you going to alter or change that constitution. It can be a written constitution, but what if it says कि by simple majority आप इसको change कर सकते हैं? So codified does not necessarily mean that it is a rigid constitution. Codified only means that it is there in one place, scattered नहीं है, codified है। जैसे the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, कोई आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कौन सी हैं तो आपको पता है कि इसके नीचे सारी मिल जाएंगी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। यूके में आप किसी एक चीज पे हाथ रख के नहीं कह सकते कि इसके नीचे मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। सो इट इज कोडिफाइड, इट इज रिटन। ठीक है जी, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली बताया गया और राइट एप्लीकेशन जी जी, उस वजह से रिजिडिटी नहीं सर नहीं, रिजिडिटी इसलिए कहते हैं कि उसको आप नॉर्मल स्टैट्यूट की तरह ऑल्टर नहीं कर सकते, इसलिए रिजिड कहते हैं। मतलब राइट और एप्लीकेशन
ऑब्लिगेशन आपने स्टेट ने आपको राइट प्रोवाइड कर नहीं, राइट एंड ऑब्लिगेशंस आपकी हो सकती हैं, लेकिन व्हाट इफ दोज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैन बी चेंज बाय सिंपल मेजॉरिटी? अगर 51% उसको चेंज कर सकते हैं तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए रिजिड नहीं कहते, सर्टन कह सकते हैं, रिजिड नहीं कह सकते। अगर हम ये कहें कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर क्लियरली मेंशन्ड इन दैट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, इट कैन बी रेड एज अ वेरी क्लियर, crystal clear, unambiguous piece of document, but it would not make that document a rigid document. Rigidity is the element of how you're going to alter or change the provisions of the constitution. इसको उससे confuse ना कीजिएगा। अच्छा जी, the Pakistani constitution primarily consists of 280 articles. इसके जो है वो 12 जो है वो पार्ट्स हैं और 25 चैप्टर्स हैं, एंड इट हैज 5 शेड्यूल्स। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। शेड्यूल्स आर टू बी ट्रीटेड, जैसे स्केड्यूल भी कहते हैं, अमेरिकन स्केड्यूल कहते हैं, ब्रिटिश इसको शेड्यूल कहते हैं, आप आइदर वे जिस तरह प्रोनाउंस करना चाहें। इट्स अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है जी। बाइकैमरल से मुराद से दो हाउस, कौन कौन से हाउस? एक बना सेनेट और नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कलेक्टिवली इट वुड बी नोन एज मजलिस शूरा और द पार्लियामेंट। अच्छा जी, नेशनल असेंबली हैज 336 सीट्स, ठीक है जी, जिसमें से 266 जनरल सीट्स होंगी, 60 would be reserved for women. Can you repeat it again? जी जी, the National Assembly, अच्छा currently this is the 16th National Assembly, ठीक है, इसको कर लें कभी यूज हो जाता है। इस वक्त की जो नेशनल असेंबली है, this is the 16th National Assembly, ठीक है। It has 336 seats. 266 seats are the general seats, 60 are reserved for women, and then the 10 are for non-Muslims, ठीक है। सेनेट जो है उसके 96 मेंबर्स हैं, और those members would be elected by the members of the National Assembly, ठीक है। ये डायरेक्ट वोटिंग से नहीं जाएंगे, तो नेशनल असेंबली में हैं वो डायरेक्ट वोटिंग से जाएंगे, ठीक है। So both these houses, ऊपर क्या है, यूके में क्या है सर? 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्टेड होते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, हेरिडिटरी भी होते हैं, टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसे पीछे से ना पूछे किसी से, सर आप बताइएगा। सॉरी नहीं, वो ठीक है। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो नोन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसका प्राइम मिनिस्टर होगा वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है सर। और जो सेरेमोनियल हेड होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो कैबिनेट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। 2 कॉन्सेप्ट्स लिख लें, इसको बहुत ज़्यादा अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंडिविजुअल
responsibility or the collective responsibility. Individual responsibility ये होती है जैसे मैंने कोई काम गलत किया तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा और मैं रिजाइन कर जाऊंगा इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि द होल ऑफ द गवर्नमेंट वुड गो डाउन इफ समथिंग गोज रॉन्ग. अगर कैबिनेट का डिसीजन कोई गलत होता है या कोई इलीगैलिटी होती है, it would reflect on the whole of the government, and there is the concept of collective responsibility involved. So the whole of the government will be blamed for it. ये नहीं कह सकते कि इस एक बंदे की वजह से हुआ. So this is the concept of collective responsibility. ये accountability parliamentary form of government में कैसे होती है उसके बारे में बात करना. Examples देंगे सर कोई जो parliamentary form of government है apart from Pakistan. India is a parliamentary form of government. Bangladesh is a parliamentary form of government. UK is a parliamentary form of government. These are what examples. Presidential form of government example. America is a presidential form of government. Russia, I'm not sure. Russia का मुझे नहीं पता presidential form of government. ये क्या चीज़ है मैंने इसको नहीं देखा. Presidential form of government में head of the government and the head of the state would be the president. Parliamentary form of government में each and every member of the cabinet usually would be a person who will be elected. Presidential form of government में elected members नहीं होते, वो अपनी मर्जी से cabinet select करता है. जैसे ट्रम्प है, वो आया तो उसने किया अच्छा ये पोर्टफोलियोज दिए, वो इलेक्टेड लोग नहीं है. दिस इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म. थर्ड फीचर लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज स्पेसिफिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इट इज अ फेडरेशन. So it is not a unitary form of government. Unitary में एक ही वो, ठीक है. So it is a federation. 18th amendment से पहले, 18th amendment came about somewhere in 2010. Sorry. Came about somewhere in 2010. उससे पहले लिस्ट होती थी. There used to be a concurrent list. Concurrent list वो होती थी जो फेडरेशन या प्रोविंसेस दोनों उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते. 18th अमेंडमेंट ने उस concurrent लिस्ट को एबॉलिश कर दिया. तो अब जो फेडरेशन की लिस्ट है, अगर उसमें कोई कानून नहीं है तो प्रोविंस के उसमें आता है. जैसे रेजिडरी लेजिस्लेशन है, वो सारी की सारी प्रोविंसेस करेंगी. तो अब दो ही लिस्टें हैं, इनफैक्ट एक ही लिस्ट है. फेडरेशन क्या काम कर सकती है, किस चीज पे लेजिस्लेट कर सकती है, और जो काम फेडरेशन नहीं करेगी वो प्रोविंशियल उसमें आएगा. सो किस पे इनैक्ट कर सकते हैं आप लोग बोलते ऐसे हैं पता ही नहीं लगता किसने बात की है. सर फेडरेशन में सबसे यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट है, उसमें यही था कि सेंटर से पावर जो है वो प्रोविंशियल में डिस्ट्रीब्यूट होती है. अदर इस कॉन्सेप्ट नहीं. फेडरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि फेडरेशन से डिस्प्यूट नहीं होती. जो प्रोविंसेस हैं वो अपने लोकल मैटर्स के ऊपर खुद लेजिस्लेट कर सकते हैं, और प्रोविंस अपने मैटर्स के ऊपर, सेंटर जो फेडरेशन है वो अपने उसके ऊपर, ये सेमी ऑटोनोमस है एक तरीके से, कि वो अपने अपने काम खुद करेंगे. ये फेडरेशन है. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें सारी की सारी पावर्स सेंटर में है. तो फेडरेशन में ये नहीं होता. सॉवरेनिटी कंफाइंड होती है इसमें. सॉरी, सॉवरेनिटी कंफाइंड होती है इसमें. सवाल ये अजीब सा है. सॉवरेनिटी कंफाइंड होती है से क्या मुराद है? मतलब ये है कि सर आप कोई एक्ट जो लेके आना चाह रहे हैं,
फॉर द लैंड वो नेसेसरी है, हाँ। तो वो उस तरह एक्सप्रेसिवली नहीं दे सकते, मतलब पहले गवर्नमेंट को या सेंटर को इन्फॉर्म करेंगे, उससे अप्रूवल नहीं सर, अगर तो लोकल सब्जेक्ट है, देखें अगर तो NWFP फॉर एग्जांपल वांट्स टू लेजिस्लेट ऑन सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू देयर प्रोविंस तो कर सकते हैं। अगर फाटा को मर्ज करना हुआ सर फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैंने मर्ज कर दिया, एग्जाम्पल हाँ। अगर इस तरह का कोई और कानून पास करना हुआ तो क्या करेंगे उसके लिए? अगर तो वो सेंटर का सब्जेक्ट है तो फिर तो आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते। अगर वो प्रोविंशियल मैटर है तो फिर आप यू आर ऑटोनमस टू लेजिस्लेट ऑन दोस मैटर्स। जब देखिए 18th अमेंडमेंट ने प्राइमरली किया क्या, 18th अमेंडमेंट ने ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी प्रोविंसेस को कि आप अपने मैटर्स के ऊपर खुद लेजिस्लेट करें। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी कि एक सब्जेक्ट है वो सेंटर और प्रोविंसेस के कॉमन उसमें आता था, तो अगर तो देयर वाज अ क्लैश, फॉर एग्जांपल सेंटर ने भी लेजिस्लेट कर दिया उसके ऊपर आपके प्रोविंस ने भी, तो इट इज द सेंटर्स लेजिस्लेशन टू विल प्रिवेल। लेकिन अब क्योंकि लिस्ट अलग-अलग हो गई है और देयर इज नो कंकरेंट लिस्ट, तो एज फार एज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड द प्रोविंस कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर। अच्छा, एक काम और हुआ 18th अमेंडमेंट ने जो किया, अभी हम सेलेक्ट फीचर्स तो चाह रहे हैं, 18th अमेंडमेंट वैसे बीच में आ गई तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। एक आर्टिकल होता था 58(2)B, वो प्रेसिडेंट को पावर देता था टू डिसॉल्व दी असेंबली, वो उन्होंने इस को रिपील कर दिया। सो आर्टिकल 58(2)B, perhaps one of the major feats of the 18th amendment is the repeal of Article 58(2)B. It provides for certain, the 18th Amendment provided for certain fundamental rights in the Constitution. इसने जो right to fair trial 18th Amendment में 10A में Article 10A, right to a fair trial, was introduced by the 18th Amendment. Then compulsory education for children was introduced by the 18th Amendment, that is Article 25A. Right to information was also introduced by the 18th Amendment, Article 19A, जो है वो right to information. NFC awards भी। आप क्या चीज यूज कर रहे हैं? सर हमने पाकिस्तानी लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी हाँ, अरे वो ठीक है, यूज क्या कर रहे हैं? ये सर नोट्स आप नोट्स अच्छा, नोट्स देख रहे हैं साथ? नहीं सर नोट्स लिख रहा हूँ। अच्छा, नोट्स लिख रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ पढ़ा से क्या हुआ? मतलब हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में सर कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है। अच्छा, यानी आप लोग मैं तो पूछ रहा था। अच्छा, सर पेपर में 18 अमेंडमेंट का पूरा एक क्वेश्चन आया था। सर हमारा 20 नंबर का इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, नहीं मैं पाकिस्तानी लॉ पे थोड़ा सा हुआ कि पाकिस्तानी सालों में पाकिस्तानी लॉ पढ़ा, चंद एक उम्र यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले बेचारे, है ना, ऐसा ही है। और कौन कौन से जरा हाथ उठाते हैं कि मैंने आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ा, आपने यू मस्ट बी फाइंडिंग इट क्वाइट सरप्राइजिंग कि ये सारे का सारा पीपीसी एक ही जगह पे क्राइम्स हैं और एक्ट कोई एक्ट किधर था ये सारा का सारा पीपीसी में हो गया। Wait till you find out that certain cautious things are there in crime. Certain things which should fall in the contract are there in the crime. You find that out. For example, malicious prosecution is a tort. You will find it over here in 182. That is malicious prosecution. Defamation हमेशा से जो है वो tort और crime रहा है. Primarily tort है, लेकिन क्राइम के खाते में भी पड़ता रहा। Trespass to a person is both a tort and a crime. And fraud would fall squarely within the province of a crime. Fraud तो tort में नहीं आता। अब वो क्यों लगा fraud tort में आएगा?
वैसे ही हमारा चले आ रहा तो इसको अच्छा जी, देन और बताएं क्या हुआ 18th अमेंडमेंट में, क्या किया है? और नहीं बताएं एनएफसी अवार्ड को क्या किया उसने? सर हर प्रोविंसेस के टैक्सेशन के मामला हाँ। हैंड ओवर कर और हैंड ओवर करने से बाद कितना किस प्रोविंस को जाएगा, जो टैक्स या रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसको स्ट्रीमलाइन किया और प्रोविंसेस को ज्यादा शेयर दिया। सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी 18th अमेंडमेंट की वजह से। मैं इसीलिए पूछा था आप यूज क्या कर रहे हैं? आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? तो हो जाता है। रिकॉल इतना अच्छा नहीं होता। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था। अच्छा जी, देन इट चेंज्ड द वे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स वर मेड। The process was made more consultative in nature. ये अभी हम 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। माई कैपिटल हम कर चुके हैं। अभी तक सैलिएंट फीचर्स में कितने आए हैं? 4 आए हैं, 5 आए हैं? क्या क्या आया? 5 आए हैं। एक मिनट मुझे बताइए। बाइकैमरल लेजिस्लेशन नहीं होती, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेशन वो है जो लेजिस्लेचर करेगा। पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर। The act that it would make would be the legislation. Bicameral is अच्छा आगे चले। अच्छा आगे Federation चले। Then this constitution by virtue, देखिए पाकिस्तान मिला कैसे था? इस्लाम के नाम पे था। So is primarily Islamic in nature. ये इसका एक salient feature है। और it is provided there in the constitution that each and every law made would be in consonance with the tenets of Islam. So anything repugnant to the concept of Islam would be null and void. इस काम के लिए एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मौजूद है। इसके प्रोविजंस लिखे हैं। आर्टिकल 228 to 231 deals with the Council of Islamic Ideology. 228 to 231 इसमें वो कॉम्पोजिशन बाकी सारी चीजें की 3 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर this constitution specifically provides the definition of a Muslim. Okay, who we would say is a Muslim. जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के ऊपर ईमान लाएगा, सारे फरिश्तों पे, किताबों पे, शादी के बाद दीदी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे तो आप बगैर नाश्ते के जाएंगे। टाइटल नोट पर देखा लीजिएगा कोई। अच्छा नहीं, आपको क्या लगता है क्यों कह रहा? अच्छा जी, then the salient feature of a Pakistani constitution is that it provides for certain fundamental rights. क्या हुआ? Why were you so confused? क्या हुआ? हाँ अभी से पूछ बताएं। मैंने सोचा कि आपने ये क्यों लिखा है प्रोविंस में ज्यादा ताकत है सेंटर में। और नहीं वो इतनी इंटीग्रिटी थी क्या?
फंडामेंटल मैं ही हूँ, बस चलाना पड़ता है. अच्छा. I know who wears the pants in the house. ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखें, it is always better to if you can operate in life without friction. That's the best thing. ठीक है. तो उसके लिए एक ही चीज होती है कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें. अब शिकायत भी नहीं लगा सकते. मैंने शिकायत की बात नहीं है, शिकायत तो करने को बेशुमार चीजें होंगी. प्लास्टिक के बजाय थोड़ा सा फाल लोगे तो फायर मारना है, मैं नहीं ये कर सकता. अच्छा जी. Fundamental rights. It provides for certain rights which are the basic rights. Those are from Article 8 to Article 28. Examples, fundamental rights के sir? Freedom of speech. Freedom of speech. fair trial, freedom of assembly, Education. 8 से 28 तक जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे मोटे मोटे देख लें. सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, फ्री स्पीच, freedom of assembly, फ्रीडम ऑफ असेंबली, freedom of fair trial, हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये मोटे मोटे. ठीक है जी. अच्छा, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इस पर आप थोड़ा सा हंस भी सकते हैं, कोई मसला नहीं. अरे इसको बात कर रहे हैं, आपने अपने लाइफ का कोई मसला नहीं. तो क्या रोएं इसके ऊपर, इस तरह से नहीं. देखिए, ये मूट पॉइंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ. अभी जो अमेंडमेंट्स आई हैं 26 अमेंडमेंट, 27 अमेंडमेंट, there is a certain perception that perhaps the independence of judiciary has taken a blow in these. I have a different view altogether. आपको बताऊंगा कि why I think that 26th and the 27th amendments are perhaps the best amendments that could have taken place in recent times. I'll give you an example. अभी टाइम नहीं है, अभी इसको चलते हैं फिर आगे बताते हैं. अच्छा, another feature of the constitution is direct elections. ये भी salient features. Then we have a national language. Urdu is the national language of Pakistan. उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि टिल द टाइम, मतलब जब हमें इंग्लिश से वी नीड टू डू अवे, तो उस वक्त तक हम इंग्लिश को चला सकते हैं, लेकिन द नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू. अच्छा जी. देन देयर आर 5 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें भी लिख लें कि वो 5 शेड्यूल्स, इनकी वही हैसियत होगी जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की होगी. ये उसी तरह 2/3 मेजॉरिटी से अमेंड होगा, अदरवाइज शेड्यूल अमेंड नहीं हो सकता. पहला शेड्यूल प्रोवाइड करता है कि व्हाट आर द लॉज व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8(1), 8(2). कौन से ऐसे लॉज हैं जहां पे फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे. क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट वुड नॉट अराइज. सेकेंड शेड्यूल में प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. उसको कैसे इलेक्ट करें. The third schedule provides for the special oaths that are taken by higher officers. Judge की oath हो गई, आर्मी के चीफ की oath हो गई, प्राइम मिनिस्टर की हो गई. Fourth schedule is the legislative list.
लेजिस्लेटिव लिस्ट कि किन मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेट प्रोविंस कर सकता है और किन मैटर्स के ऊपर सेंटर करे। बेसिकली सेंटर की लिस्ट दी गई कि सेंटर्स इन मैटर के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, जो उस लिस्ट में नहीं है वो सारे के सारे प्रोविंस के खत्म। फिफ्थ शेड्यूल, remuneration and terms and conditions of the superior judges को डिस्कस करा। पहले 7 होते थे, 2 मेरा ख्याल है खत्म कर दिए। उसमें क्या था किसी को पता? आपको बताओ। नहीं, वो जो 6वां और 7वां जो रिपील हो गया उसमें क्या था? नहीं, पहले 7 शेड्यूल थे, ज्यादा थे। वो जो 2 खत्म हुए उनमें क्या था पता है? अच्छा जी, अब मोटे मोटे आर्टिकल्स जो कि सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मौजूद हैं। सॉरी, रिन्यूमरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस। जो डेली लाइफ में आप एनकाउंटर करेंगे, ठीक है जी। आर्टिकल 4 देख लें। A person has a right to be dealt with in accordance with law. Article 9, security of persons. A person shall not be deprived of liberty or life, but in accordance with law. आप यहाँ से बाहर निकलते, आपको पकड़ लेता है, आप उसे पूछते हैं हाँ जी आपने मुझे क्यों पकड़ा, वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 10, राइट टू अ फेयर ट्रायल। राइट टू अ फेयर ट्रायल में बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट टू अ फेयर ट्रायल में सिर्फ ये नहीं आता कि जज अनबायस्ड होगा और प्रोसीजर फॉलो होगा। राइट टू फेयर ट्रायल में एक्सेस टू द कोर्ट्स भी आ जाता है। पिछले हफ्ते से पहले रास्ते बंद थे, तो हमने ये राइट टू अ फेयर ट्रायल का नोटिस भेजा। वी फाइल्ड अ रिट। व्हेनेवर देयर इज, आपके पास रेमेडी होती है, ये ब्लॉकेज है, ना वकील जा सकता है, ना कोई क्लाइंट जा सकता है, तो हमने एक रिट फाइल की थी। I was the counsel in that case, and the chairman executive committee, Zafar Khoka, was the petitioner in person. तो वो अभी पेंडिंग है सोमो साहब के उधर, वो देखते हैं उसका क्या डिसीजन आता है। अच्छा, आर्टिकल 19 और 19A भी दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिकल्स, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड राइट टू इंफॉर्मेशन है रिस्पेक्टिव। देन आर्टिकल 25 इज द इक्वालिटी। Every person, every citizen is to be treated equally. कोई जेंडर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक नौकरी है प्रोसिक्यूटर की है, तो आप एग्जाम देने जाते हैं, वो कहते हैं नहीं खवातीन तो प्रोसिक्यूटर्स नहीं हो सकती, तो आप इसको अंडर आर्टिकल 25 चैलेंज करेंगे क्योंकि दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वैसे अगर आप ट्रेडिशनली या क्लासिकली देखें ना, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मर्दों के हवाले से ज्यादा है। ये आम तौर पे एक मिसकंसेप्शन है कि जो है वो औरतों के साथ, औरतों को शायद ज्यादा राइट्स मिले, जो ज्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है वो मर्द होता है। नाश्ता डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा आप सीढ़ियों पर, अच्छा सर। फिर आर्टिकल 199 देख लें। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट यूज्ड आर्टिकल बाय एनी ऑफ यू, ठीक है। इट इज द jurisdiction of the High Court. इसमें आप रिट फाइल कर सकते। एनी वन ऑफ यू, पीछे वाले थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर ले सर। आप हुजूर ऊपर देखिएगा, आप रिट्स की टाइप बताएंगे? हाँ जी,
सरसरी बता दें क्या होती है। देखें ना कैसे मुश्किल सा पूछ लिया, बाकी चारों आपको बताओ, ऐसा ही है ना? सरसरी क्या होती है सर? सर्टिफिकेट मतलब कि आपका जो हाँ तो टेक्स्ट बुक आंसर दिया है ना। जी सर, हाँ ठीक है। कोई भी आपका जो CN है लोअर कोर्ट का उसको जो बेसिकली ये एक तरीके का रिव्यू है। रिव्यू जब हम बात करते हैं ना, सर्टिफाई कर रहे हैं आप किसी भी CN को कि आगे आपने ठीक दिया है या गलत दिया है, ठीक है। Habeas corpus, produce the body if somebody has been illegally detained or kept at a place without any lawful authority. Wrongful confinement. Wrongful confinement. Quo warranto. अंडर व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के? Example. एग्जाम्पल अगर कोई मतलब वापडा के जो आजकल रेगुलेशन है या वो बगैर बताए जो बिजली का आना जाना है इस तरह की। नहीं सर, नहीं सर, मैं लिंक होगा सर। कोशिश करूँगा सर। लीगल लिंक नहीं होगा। कोई भी इस तरह की सर के आपने कोई एक ओहदा लिया हुआ है, आपने किस कानून के तहत वो ओहदा लिया है, या कौन सा मजाज कानून आपको ऑथराइज करता है ओहदा रखने का, वो वारंटो उस चीज। बिजली के सर्किट से पता नहीं कैसे आप कनेक्ट करेंगे। नहीं सर, मैं इस तरह नहीं कर रहा। मतलब आपके ये भी एक राइट है ना कि सर मैं एक सोसाइटी में रह रहा हूँ सर, मुझे बिजली की जरूरत पड़ती है, वो सर रातों रात और पता नहीं कब किस तरह लेके जाते हैं, और फिर आगे से सर मैं इसको कंप्लेंट पास करता हूँ, वो मुझे जस्टिफाई नहीं करते, कंप्लेंट मेरा लेते ही नहीं है सर। तो अंडर व्हाट अथॉरिटी वो ये कर रहे हैं सर? ये नहीं है। Under what authority a person is holding that office is the rate of quo warranto. ठीक है सर। Prohibition of mandamus आपको पता ही है। For example, prohibition की एग्जाम्पल सड़क में खोद दी है, रास्ता रोक दिया है, ऑल्टरनेटिव रूट कोई नहीं है, तो कोर्ट उसको कहेगी कि आप ये काम नहीं कर सकते, इट इज गोइंग टू प्रोहिबिट। ठीक है। मैंडामस का बेसिक नीड्स आपकी जो है उनकी प्रोविजन के अंदर कोई मसला आता है कोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट। सर ये मुझे क्वेश्चन है, हमारी बात कौन सर इसके ऊपर एक्शन ले सकती है जो तारिक मुजाहिदी साहब के साथ हुआ है? सर फाल जोगर साहब के ऊपर कोऑपरेटिव हो सकती है सर बात क्वेश्चन है, मतलब सर वो अंडर व्हाट अथॉरिटी, ही इज नॉट अथॉरिटी टू डिसमिस द लाइसेंस और टू कैंसिल लाइसेंस। लाइसेंस नहीं कैंसिल किया ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी, मोस्ट ऑफ इट ऑफ इट इज गोइंग लाइव, लेकिन रेट ऑफ को वारंट वुड नॉट लाई। मुझे नहीं पता। अच्छा, आर्टिकल्स 175 जो है वो देख लें, 175A, 175(3), these relate to the appointment of judges and the separation of judiciary from the executive. This is these are the articles which are most commonly used. Article 1 देख लें, it says that Pakistan is a federation. Loyalty का हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 5 बीच, आर्टिकल 6 that will be high treason, 58(2)(b भी हमने डिस्कस कर दिया। एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो 227 है। This says that all existing laws will be brought in consonance with the injunctions of Islam, and if there's a clash, that law would be null and void. This is Article 227 of the Constitution. Article 48 is also important, that basically the establishment of a parliamentary form of government will be relate karta hai ye article. The Prime Minister is going to advise the President, and the President is going to act on the advice of the Prime Minister of Pakistan. This is Article 48. Article 91 is another important article, which deals with the elections of the Prime Minister of Pakistan.
government loses its confidence, the vote of no confidence would be needed. That is Article 95 of the Constitution. मोटे मोटे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीधा चीधा बताऊँ, बाकी तो सारे आप देखेंगे तो. Then, in relation to the members of the National Assembly or the Provincial Assembly, जो most commonly article use होता है वो 62 और 63 वो देख लें कि qualifications क्या हैं to be a member of the Assembly. 62(1)(f वो सादे का अमीन की जो requirement है वो that is important. Matters pertaining to election, Article 63A is also important. It deals with the floor crossing. एक पार्टी का हो कि दूसरी पार्टी को आप अगर वोट करते हैं तो how the constitution reads. मैं skim करना, obviously if I go through 280 articles it will take a much longer time. Articles 218 and 219 deal with the Election Commission of Pakistan. If there is a dispute between the Federation and the federating units, who's going to resolve that dispute? Sir, I'm an expert. Supreme Court नहीं, Council of Common Interest से आपकी चीज़ है, वो इनके आपस के disputes को litigation की बात करें. CCI लिखें, Council of Common Interest. Council of Common Interest is a body for resolving disputes between the Federation and the province, particularly disputes relating to natural resources, for example, electricity, water. ये disputes Council of Common Interest करेगी. Articles हैं इसके 153 and 154. NFC वो Article 160 डील करता है कि टैक्स और रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है प्रोविंस के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड फंक्शंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज अंडर आर्टिकल 45. सो द रीसेंट अमेंडमेंट्स, अभी दो जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं विच आर हॉट मोस्ट मतलब डिबेट 26th and the 27th amendment. तो थोड़ा सा बता दें कि 26th amendment ने किया क्या है. Constitutional court ना नहीं सर, वो मेरा ख्याल है 27th amendment 26th ने क्या किया. लिख लें, अच्छा होता है. वो कई दफा हम डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन we mix the two. कि 27th ने क्या किया है, 26 ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए थे. जो FCC बनी है वो 27th अमेंडमेंट में बनाई है. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड इज अ क्रिएचर ऑफ द 27th अमेंडमेंट एंड नॉट द 26th. जो पहला काम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेशुमार काम किए, वो टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस को ऑल्टर किया था इसने 26th अमेंडमेंट. इसने इसको एज अ फिक्स टर्म फॉर 3 years का. लिख लें. और इसको जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल से निकाल दिया. द टॉप 3 सीनियर जजेस आउट ऑफ दोज एनी वन कैन बी अपॉइंटेड एज द CJP. एक कमेटी रेकमेंड करेगी. वो कमेटी वुड कंप्राइज ऑफ 12 members, 8 from the National Assembly and 4 from the Senate. The committee recommending the name of the CJP. उसकी बात करें. 8 National Assembly से होंगे, 8 इधर से होंगे National Assembly से और 4 Senate.
सीनियरिटी प्रिंसिपल को चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाए डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। जब 27th अमेंडमेंट आई तो फिर उसने अलहदा से एफसीसी बनाया। 26th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने। JCP was reconstituted. Judicial Commission of Pakistan was reconstituted. 26. Reconstituted. More political people were given a say in that. Performance based criteria भी कर दिया था for high court judges कि उनकी particular file के ऊपर how they are performing वो भी लिखा था। This is another thing which the 26th Amendment. So it created more accountability for the judges of the Supreme Court. Here it provided for a new fundamental right, which is Article 9A. This relates to the environment. Every person shall be entitled to a clean, healthy, and sustainable environment. The provisions of usury or riba, those were also not abolished, but a time frame was given for their abolishment as far as practicable. Perhaps the time was January 1st, 2028. रिबा और यूजरी को खत्म करेंगे। So it, in essence, strengthened the concept of parliamentary sovereignty. Critics say that it is an onslaught on the independence of judiciary. You know what onslaught क्या होगा? What is an onslaught? हाँ, attack. अच्छा सर, 27th Amendment. 27th Amendment ने जो काम किए वो भी कंटेम्पररी है ना, बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने जाके पढ़ ही लेना अगर मैं 1 से 280 तक चलूँ तो। It established another court which is now at the apex, known as the Federal Constitutional Court, FCC. ठीक है सर? Then it changed Article 200 of the Constitution. Pehle, it was mandatory to ask the judge who was being transferred कि आप अगर अलाउ करें या आप कंसेंट दें तो आपको एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ले जाया जाए। ये अमेंडमेंट 27th Amendment did away with that consent thing, and now the judge can be, even without his consent, transferred from one high court to another. And if he refuses, it would be treated as a misconduct. He would be proceeded under Article 209, and this would be treated as a misconduct on the part of the judge. Sorry, आपने कुछ पूछना सर? आप पूछो जी। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं, वो एक था उसके अंदर, लेकिन नाउ इट इज ट्रीटेड एज अ मिसकॉन्डक्ट। वो जो शुरू में था ना, वो पता नहीं इट हैज क्रिस्टलाइज्ड इनटू लॉ और नॉट। वो मैंने भी पढ़ा था कि वो रिटायर्ड ऑटोमेटिक डीम्ड रिटायरमेंट की जो प्रोविजन थी, पता नहीं अभी डीम्ड रिटायरमेंट है या नहीं है। किसी के पास टेक्स्ट पढ़ा? सॉरी, अभी नहीं है ना, वो पहले था, पहले वो थी प्रोविजन। अभी जो 27th Amendment आई है
उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर उसने रिटायर होना है तो फिर वो रिजाइन कर दे। जो डीम्ड वाला था ना वो खत्म हो गया एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ मिसकॉन्डक्ट। अच्छा, देन इट क्रिएटेड सर्टेन ऑफिसेस, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया ओहदा क्रिएट किया 27 अमेंडमेंट, और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा abolish कर दिया। Then it has introduced a lifetime rank for field marshal, 5 stars, full privileges, uniform, perks for the rest of his life. Previously, the President of Pakistan enjoyed a certain level of immunity when he was in office. This amendment enhanced that immunity for his lifetime. So now the President of Pakistan will enjoy the immunity for the rest of his life and not for the term for which he was President of Pakistan. Same is the case with a general who has been elevated to the rank of a 5-star. Changed the size of the cabinet, the provincial cabinets as well. While 11% of the total strength of the parliament could become the cabinet, it increased that from 11 to 13% of the cabinet. Now it can be up to 13% of the total strength of the assembly. NFC को भी इसने थोड़ा सा किया है, कुछ सब्जेक्ट्स जो the provincial subjects like education, इसको हो सकता है वो दोबारा उसकी वजह से चेंज, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फ्रंट लिस्ट में चले गए। समझ आई बात? NFC लिस्ट, it has changed the NFC and subjects like education, population planning, National Finance Commission. Is to be dealt with the federation. ठीक है? अच्छा, कोई important cases पड़े हो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में क्या बोले? 200 में क्या हुआ? तो राइट स्ट्रीम बलूचिस्तान में उसने किसी बंदे को कत्ल किया था सर। फिर वहाँ की जो लोकल जरगन है सर, उसको फिर सजा दी सर। फिर लाहौर हाईकोर्ट को अपील पे आया, इधर से वो बरी हो गया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उसको दोबारा सजा हो गई सर। याद है हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात, वो FCR है, FCR FCR क्या होता है? FCR आर्टिकल 6 के तहत इसको सजा हो गई। जो हैंस कैल्सन की थ्योरी थी ना, जो बेसिक नॉर्म थ्योरी, उसके अंदर डिस्कस हुई 200 का केस। फैक्ट्स आर नॉट रेलेवेंट, ये देखिए 1958 का केस है, पढ़िए था उसको। Criticized case, dark chapter of the Supreme Court of Pakistan. Sir, one case almost all of them are not. It's the leading conspiracy cases. Asma Jati. आसमा जिलानी वाला केस, Why they case? आसमा जिलानी का केस भी देख लें। अच्छी आपकी बात। आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1972, 200 का केस 1958 का देख लें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसा देख लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। मौलवी तमीजुद्दीन का केस है 1955। फिर अल जिहाद ट्रस्ट का केस है 1996 का केस, जिसे जजेस केस भी कहते हैं।
constitutional case as such. मैं कोई constitutional लटका दिया था उसको, लेकिन constitutional importance नहीं थी उसकी as such. उसका जो रेफरेंस बाद में लाया हुआ वो perhaps was more of a constitutional value. वो तो एक criminal case था, सही था, गलत था, लेकिन it did not have that constitutional implications. अल जिहाद का देखिए कि आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो मुशर्रफ की इमरजेंसी, जफर अली शाह का केस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल 100%, बहुत इंपॉर्टेंट केस, उल्लेखनीय 2010 का है जफर अली शाह का. उसमें उन्होंने कहा था जफर अली शाह केस में कि जो salient features हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इवन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज दैट. अच्छा, यूएसए की जुरिसडिक्शन का एक केस तो बड़ा कॉमन सा हर एक की नजर से गुजरा हुआ, बार्बरी एंड मेडिसिन का केस है. ये एक पढ़ने का काफी है मेरे ख्याल से. यूके के भी काफी सारे केस लॉज हैं, जैसे एंटिक, एक लिख लें ज्यादा, ENTIC के एंटिक वर्सेस कैरिंगटन 1776 का केस. अमेरिका में आजकल एक केस, रिसेंट केस है 2024 का, ट्रम्प versus Trump versus the United States 2024 on the immunity of the president. So this is more or less that we're going to discuss today. I'm not sure ये 1.5 hours का लेक्चर था कि 1 घंटे का लेक्चर था. मुझे तो उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे का लेक्चर, कितना लेक्चर है? 1.5 घंटे. चलें, this was supposed to be 1.5 hours of lectures. अच्छा, अब कोई सवाल है? आधा घंटा ब्रेक नहीं, 10 मिनट ले लीजिएगा. You would go to the High Court, you file a writ petition. ये तो एक स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में जाएगा ना. अगर हम देखें प्रैक्टिकल implications are different. देखें, perhaps few of you, perhaps none of you, ये एक जिशान साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये क्या हुआ? On the conclusion of a lecture, we were supposed to clap. क्या हुआ? The question का आंसर यही है ना कि अगर if there's a breach of a fundamental right and you think your fundamental rights are not being given, you go to the court. अब practically अगर जनाब कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही तो उसमें से लीगल क्वेश्चन नहीं बनता. वैसे it's a very gloomy state of affairs. No, that's fine. Fundamental rights are not absolute. Lekin either right to a fair trial, right to a counsel, right to approach the court, these are fundamental rights. So इसमें absolutism का कोई को नहीं. जी सर. क्या? बहुत ज्यादा ब्रॉड ऐसा सवाल है, स्पेसिफिक सवाल पूछे. ये तो ऐसे है जैसे आप कहें जी कानून के ऊपर ओवरव्यू दे दें. अब इस पर क्या ओवरव्यू दें? हाँ.
इसमें बेसिकली अगर हम इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करें ना तो द बेसिक प्रॉब्लम इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन. It is more of a theory in nature than the practical implementation is lacking here. ये एक मसला है अगर हम इसको critically evaluate करें. Secondly, इसके अंदर if I were to amend the constitution, I would very clearly spell out the role of the federation and the provinces. ये जो overlap अभी तो इन्होंने दूर किया है, लेकिन इसको मैं clearly और ज़्यादा spell out करूँ. There are certain things which are misused. For example, जैसे हम minorities को rights भी देते हैं लेकिन उनके discrimination भी मौजूद है. वो भी मैं उसको minority rights के ऊपर भी I would put in more in the constitution. There are a number of things which can be improved. See, it is not our purpose to improve, sir. देखिए आप 25-30 करोड़ रुपए लगा के पार्लियामेंट में जाते क्यों हैं? आप लेजिस्लेट करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं ना. देखिए मुझे ये बताएं, every other lawyer who has like 15 or 20 years of practice is vying for the post of a high court judge. क्यों? इंसाफ देना चाह रहे हैं. भाई आपको मैं यही बात कर रहा हूँ कि the purpose behind anything is the driving force. If I am contesting elections in order to contribute to the welfare of the people of Pakistan, I would not adopt these means. Elections में क्या हुआ, बाकी रिजल्ट्स में क्या हुआ, खर्चे कैसे किस लेवल के हुए, ये सारी चीजें बताते नहीं है कि हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है. हमारा प्राइमरी पर्पस अगर लेजिस्लेट करना हो, आपको पता है सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन डिक्टेटोरियल रेजिम्स के अंदर हुई है. आपकी डेमोक्रेसी में तो लेजिस्लेशन हुई नहीं. जो कानून काम का बना है वो आपके डिक्टेटर के टाइम के बने हुए कानून है. अनफॉर्चुनेटली हर चीज ही कॉपी हुई है. तो इसलिए हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि 26 अमेंडमेंट और 47 अमेंडमेंट मेरे हिसाब से बड़ी जबरदस्त. मेरे हिसाब से that's I would have a certain prejudice. I tell you why. Perhaps you would not know I was General Secretary Islamabad High Court in 2021. ठीक है, मैं इलेक्ट हुआ था, मैं लैंडस्लाइड कर सवाल मुकम्मल था. सॉरी नहीं उसके तहत अच्छा मुकम्मल नहीं होता. सवाल को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ. हाँ इसमें 27 अमेंडमेंट में ये बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान जो जनरल है तो सजा और जजा से बिल्कुल मुकर्रर हो. उसी तरह हमारा दीन इस्लाम हम ये कहते हैं कि सजा से कोई नहीं होता फिर बताओ बैठा कमीशन बिल्कुल मुकर्रर नहीं हो सकता. एक कंट्रडिक्शन को आप कैसे देखें? ये कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है और ये अन इस्लामिक इन नेचर है. अगर आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछें, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी एज फार एज व्हेन यू वर्किंग इन ऑफिस इसलिए दी जाती है ताकि हर चीज के अंदर रुकावट ना आए. ये पर्सनल इम्यूनिटीज नहीं. ये नहीं है कि आप बाहर जाकर किसी को कत्ल कर देंगे तो नोबडी कैन आस्क यू व्हाट यू डन. सो अगर आप मुझसे पूछें तो पर से दिस क्लॉज इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ and it is hit by the basic of the constitution. क्योंकि देखिए apart from immunity जो दूसरे का आपने किया है तो उसके fundamental rights को खराब किया. So this is something जहाँ हाथ उठाया करे पता ही नहीं चलता पहले कोई कौन रहा है. जी नहीं सर नहीं, ये क्लेम नहीं किया मैंने. पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंट कहा है कि पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट हुई है. आप जुडिशरी के हैं. हाँ तो वीक हुई है ना. हाँ वीक हुई है. नहीं सर नहीं, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट है वो इंडिपेंडेंट हुई है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हुई. जुडिशरी का तो बेड़ा खराब हो गया 26 अमेंडमेंट की वजह से.
This is a common perception. सर आप कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं पार्लियामेंट में, हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पार्लियामेंट हमेशा से वीकर होती है, पर अमेंडमेंट्स की क्या फायदे हैं? थ्योरी में और प्रैक्टिकली क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो जुडिशरी थी ना, दे वर ऑन द हाई टाइड इन देयर, मतलब 4 or 5 years from now, 21 में 20 में इफ्तिखार चौधरी के पीरियड के ऊपर दे वर मेडलिंग इन ईच एंड एवरीथिंग. They were sending back PMs, they were sending back people who were elected, they were setting prices for sugar, वो डैम फंड्स क्रिएट कर रहे थे, हर वो काम कर रहे थे जो एग्जीक्यूटिव का काम था वो जुडिशरी ने. So judiciary started usurping all these powers and this is a backlash to what they've been doing. सर आप ये सब देखें जब भारतीय जनता पार्लियामेंट को करना तो पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करें. सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ना मेरा व्यू डिफरेंट है. आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पेपर डिग्री की बात करते हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली पेपर डिग्री वाला सबसे ज्यादा नालायक आदमी होता है एज फार एज लोगों के मसाइल हल करना, हाउ टू गिव रिलीफ टू द कॉमन पर्सन इज कंसर्न, उसको पता ही कुछ नहीं होता. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम इसको डिग्री बेस्ड कर देंगे ना, तो ये आई डोंट थिंक दैट दिस इज द राइट क्राइटेरिया कि कम अज कम आप ये की डिग्री हो. आप पूछ चुके हैं सवाल, पूछना दोबारा. But I'm not linking my eligibility criteria to delegating certain form of degree. क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर आप बाकी पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहते वो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है 62 और 63 का. 2 साल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अच्छी शोहरत का हामिल हो, नेक नाम हो, सादे को अमीन तो पता नहीं कौन हो सकता है कौन. सर सीजीपी के मेंबर्स कौन सेलेक्ट करता है ये कमेटी, और आया सर्विस में अपोजिशन सीपी मेंबर्स लेते हैं या सिर्फ किसमें सॉरी सीजीपी सर जेसीपी जेसीपी सर ये जो कमेटी है सर, इसमें सर अपोजिशन के मेंबर आपके जी. होते हैं? ऑपोजिशन के भी 2 मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स इसके होंगे. कौन इसको सेलेक्ट करता है? रिस्पेक्टिव पार्टीज अपने अपने मेंबर्स देंगी. जी सर कुछ क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए. हाँ अपने अपने डोमेन में रहें, अपने अपने एम्बिट में काम करें. देखें दोनों आपस में क्लैश ना करें. डिमार्केशन मौजूद है. जिधर एजुकेशन होनी है उधर जुडिशरी का रोल है, जिधर लेजिस्लेशन होनी है, जिधर एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज करनी है, वहां पे आपका इलेक्टेड मेंबर करेगा. जो जुडिशियल एस्पेक्ट है, देखें अब चीनी की प्राइसेस सेट करना जजों का काम नहीं है. अब डैम फंड नो मैटर हाउ द ग्रेट द कॉज इज, ये जुडिशरी का काम नहीं है. तो जो अपने एम्बिट में रह के जो उनको असाइंड जो उनके रोल्स हैं, देखिए ना द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हम पढ़ते हैं, डाइसी को भी पढ़ा, रूल ऑफ लॉ में पढ़ा, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं. जब आप अपने एम्बिट से बाहर जाके कोई काम करते हैं, देन दीज काइंड्स ऑफ बैकलैशेस कम इन प्ले. ये प्रिवेंटिव मेजर्स ही है ना. 26 एंड 27 अमेंडमेंट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स कि आपने उसको जुडिशरी को जो एक इन्होंने एक्स्ट्रा टीथ डेवलप किए थे वो उन्होंने निकाल दिए 26 और 27. तो आइदर वे, आइदर ऑफ द टू. अगर हम प्योर डेमोक्रेसी की बात करें ना, तो डेमोक्रेसी में अ पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड by the people of Pakistan is supposed to be the most powerful person or the institution. Parliamentary sovereignty भी यही है. Parliamentary sovereignty improve हुई है और judicial independence, judicial absolutism ये ठीक है. Judicial absolutism की मिसाल हमारे पास बेशुमार मिसालें मौजूद हैं. नवाज शरीफ का केस मौजूद है, इससे पहले भी केस है. और जी जैसे कि यूपी में अनक्वालिफाइड खुला है, लेकिन पाकिस्तान में उसको अनक्वालिफाइड करने में कामयाब हो गए एक तरह से. लेकिन फिर भी आप यूपी में देखेंगे वहाँ पे बेहतर तरीके
वहाँ सोशल नॉर्म्स बहुत बेहतर है। वहाँ इतना सा बच्चा अगर कोई टिशू का पेपर नीचे गिराता है ना तो उसका वालिद या उसकी माँ से कहती है कि पिक इट अप। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन लॉ सिस्टम है वो हमारी कन्वेंशन के मुताबिक नहीं है? इसका ये मतलब कॉमन लॉ सिस्टम किसके मुताबिक? हमारी जो कन्वेंशन है यहाँ रवैयात है या डेली लाइफ की उसके मुताबिक नहीं है। बड़ा अजीब सा, इसको जरा क्लैरिफाई करें, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कॉमन लॉ किसको कह रहे हैं? कॉमन लॉ सिस्टम जो जैसे एक्सरसाइज हो रहा है यूनिट के अंदर, आपने कहा कि पैरेंटली एक बड़ा अक्सर शामिल और उसको कॉमन लॉ नहीं कहते, कॉमन लॉ चीज है। कॉमन लॉ के तो आप टर्म एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ना कॉमन लॉ। चले ये जो रवैयात की यूके में जो एक उनका कानून वो चल रहा है उसमें रवैयात का मेन अमल दाखिल है। तो आया जो पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम एक्सरसाइज हो रहा है ये रवैयात से एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा जो गैप है वो उस वजह से ऐसा क्लैप्स हो रहा है या फिर कोई दूसरा दोबारा रिपीट कीजिएगा, सवाल स्ट्रेट करें, क्या कह रहे हैं? सवाल नहीं समझा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ is there is any difference between the conventions of Pakistan and judicial system of Pakistan? क्या सवाल है ये? मतलब I am at a loss to understand the question. रवायती तरीक़ेकार जिसके तहत पाकिस्तान का माशरा चल रहा है, जिस तरह कि अगर दो मतों के दरमियान मसला हो जाता है फिर बैठ के जिरगा कर देते हैं, ये एक रवायती तरीक़ेकार है। एक आ गया प्रॉपर आप कोर्ट में जाए आप उसके लिए को बढ़ा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कन्वेंशन सेट अब जो पाकिस्तान में चल रहा है रवायती तरीके से और एक जो हमारा जुडिशल सिस्टम आया, हमारी रवायात में और जुडिशल सिस्टम में कोई गैप तो नहीं है। गैप किस हवाले से गैप की बात कर रहे हैं? के हवाले से या समझने के हवाले से या एक प्रोसीजर के जरिए गुजरने के हवाले से? सवाल पूछे यार। सर ये मशरकी रिवायत बात कर रहे हैं, अजीब सा सवाल है ना कि जिसका साल पहले कोई नहीं, कि इसमें गैप तो नहीं है किस चीज में? कन्वेंशंस में हमारी रिवायात के अंदर और हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर कोई गैप तो नहीं है? आप पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, नहीं है, कहीं नहीं है, रिपील हो गया। 184(3) has been repealed। बहुत अच्छा हो गया, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इनका काम नहीं था। It was an exceptional, extraordinary power given to them to be exercised sparingly। हर चीज के ऊपर इन्होंने जो है वो एक्शन लेना शुरू कर दिया स्टूडेंट को। दिस इज नॉट देयर प्रोविंस, दिस इज नॉट देयर एम्बिट ऑफ स्कोप, इट हैज बीन एबॉलिश्ड। डेमोक्रेसी से जो इलेक्ट होके आए वो करें ना, जजेस अपना काम करें। जजेस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, जजेस एजुकेट करने के लिए बैठे हुए हैं, उन मसाइल को एजुकेट करने के लिए बैठे हुए हैं जो उनके सामने लाए जाए। जा के उठा के मसाइल अपने पास ला के अपनी मर्जी की फैसले देने के लिए नहीं बैठे हुए। हो गया ना अब इसको। जी, इट हैज बीन रिपील्ड। आर्टिकल 184 हैज बीन रिपील्ड। 184(3) यूजिंग सर। जी सर, एक मिनट उधर दें। स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हुए। देखें, मैं एज फार एज ट्रांसफर ऑफ जजेस इज कंसर्न, आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ जजेस। लेकिन जिन बेसिस के ऊपर ट्रांसफर हो रही है वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पर्सनली है। पर्सनल बायसेस हैं, फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं है, या एक हर्डल कंसिडर करते हैं जज को, तो वो जजेस को ट्रांसफर करते हैं। एज फार एज ट्रांसफर पर से इटसेल्फ इज कंसर्न, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। देखें, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, एक जो ताल्लुक बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप एक स्टेशन पे रहते हैं वो भी खत्म होता है। नंबर ऑफ एडवांटेजेस फॉर द पेशेंट। लेकिन अभी जो अनफॉर्चुनेटली जो रोटेट कर रहे हैं, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इस मैकेनिज्म को होना चाहिए। आपकी बात ठीक है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि वाई प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लाइक व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड इट, क्योंकि वो तो उनके सेशंस का सबका पार्ट होता है। क्यों कंसिडर होता है? एक सेरेमोनियल हेड जो है, तो आप कहते हैं पार्लियामेंट मोर ऑफ अ सेरेमोनियस नेचर हेड ऑफ द स्टेट।
This is how the constitution is built. Why certain things? Why is always a very difficult. Why black coat? सर मैंने इसी वजह से पूछा रेशनल होती है कुछ सब चीज़ों के लिए Rational, as far as I understand, is that it's a ceremonial thing which is there in the constitution. That's why it's there. जी sir. देखिए किसी चीज की यूजेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए क्या हमारे पास कोई इम्पार्शल अक्रॉस द बोर्ड क्राइटेरिया मौजूद है या नहीं मौजूद। जब तक वो क्राइटेरिया मौजूद नहीं है उस वक्त तक तो ये इम्पैक्ट करेगा। देखिए हम अगर आर्बिट्रेरी तौर पे एक जज को उठा के एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस भेज देते हैं तो फिर तो वो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर इसका कोई क्राइटेरिया या इसका कोई एक मैकेनिज्म सेटल हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस वुड बी मोर क्लियर और विदाउट आर्बिट्रेरी ट्रांसफर। ट्रांसफर से पहले मसला ये था कि यहाँ पे अपनी उनकी एक लॉबीज, यहाँ पे अपने चैम्बर्स, यहाँ पे अपने एसोसिएट्स, दैट वाज आल्सो प्रॉब्लम। जी थैंक यू वेरी मच। हाँ जी पूछिए। लोअर कोर्ट्स में भी रोटेशन होनी चाहिए। करवाएं, पर्चा करवाएं मेरे ऊपर। होगा तो ना मैंने नहीं कोई साथ नहीं होता। होता होगा 2021 में आई वॉज दी सेक्रेटरी और हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट अडियाला चली गई थी। पता है वो जो झगड़ा हुआ था वाला जो I was the general secretary then, the president, the general secretary, the VP, the joint, all of the cabinet was in Adyala. आप तो अप्रिशिएट करते हैं, कभी आप ये भी तो देखें ना कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बड़ा हार्ड इम्पैक्ट होता है। कहना बहुत आसान है कि चलो चलो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जब पीछे मुड़ के देना होता है क्यों नहीं। तो आप अकेले पकड़ के ले जाते, फिर जो है वो आप होते और जेल होती। 200 दिन आपने जो है वो वहाँ की दाल और कद्दू और टीटे खाए होना तो आप कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सर ये भी तो रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लॉयर्स खुश हैं जो अभी हुआ है 26 सर्विस। हाँ obviously, particularly the lawyers of Islamabad feel relieved because इनके लिए तो ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। जी सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपने हाथ उठाया था। 227 और 230 बाद में जो आपने सर इस केसेस का हम आप सीसी में लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या फेडरल कोर्ट। शेड के 227 से 227 से 231 में स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे किस चीज का केस लगा। ये तो आपस में डिस्प्यूट को सेटल करेगा। अगर वो जो आपको देखें वो जो आप ईगो हर्ट हो जाती है ना वो ना करें। वो जो आप बात कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट इज द आर्बिट्रेटर एज फार एज द प्रोविंशियल एंड द फेडरेशन के अंदर जो डिस्प्यूट कंसर्न है वो जरूर मैं इसी रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। सर मैं वो नहीं कर रहा, मैं 227 की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 227 से 235 जो आपने दिया है इस्लामिक इंजेक्शंस को फॉलो करते हुए सर वो जो लॉ होगा जो लॉ खत्म होने चाहेगा वो लॉ किधर सेटल होगा? वो फेडरल शरीयत कोर्ट करेगी। फेडरल शरीयत कोर्ट ही अनाउंस करेगी कि वेदर द लॉ इज अनइस्लामिक और इट इज इस्लामिक। आप चैलेंज करेंगे उसको फेडरल शरीयत कोर्ट में। आप FCC पे चले गए ना। मैंने कहा इन तीनों में काम जी सर हो गया जी। कोई सवाल है सर? थैंक यू वेरी मच।